जूम क्लाउड, यहाँ क्लाउड Yes. और होता है ना? Yes, cloud हो रहा Okay, okay, good, good. So you can do continue recording on cloud once session start. था. Okay. Okay, thank you. And I have to pause during the kid session, right? Yeah, yeah, you have to pause the kit session again, restart with the speaker, main speaker. Okay, got it. Got it. Yeah, thank you. पण त्यांना टेक्स्ट केलं तसं, पण त्यांचे काही रिस्पॉन्स आला नाही. बघूया.
लोक जॉईन नाही होत आहेत, माहिती नाही, तर त्यांना कॉल करतो मग मी. असे उजिन तुझी ना रेकॉर्डिंग सुरू आहे, तू पॉज केला आहे का? नाही, सुरू आहे. हो, मग आता पण सुरू नाही करायचं आपण. ठीक आहे, चालेल. Should be again. Think you are muted, Bhanteji. Okay, Okay. let's start. नहीं बोल रहा यार मैं प्लीज. Good morning, good evening, Nama Buddhaya, Jai Bhim, Vandami Bhante. Welcome everyone to our weekly online Buddha Vihara session. I am Ashay Nagdeve and I will be your host today. Before we begin, I would like to go over a few guidelines to ensure everything runs smoothly. Please mute yourself if you are not speaking. Make sure your Zoom name shows your first and last name to help us identify and admit you quickly. Keep the discussion focused on the topic and avoid personal or political comments. Today's agenda is Dhamma Talk, 22 Vows and Dhamma Diksha by Venerable Bhante Siri Sevali. Kid Story by Avanika Mendaukar. Guest speaker is Gautama Prabhu, who will be speaking on Buddhist heritage towards inclusive society. Now, I will start with the Kama Yachana. Okasa Vandami Bante Dwaratayenam Maya Katam Sabbam Aparadam Kamatu Me Bante Dutiyampi Okasa Vandami Bante Dwaratayenam Maya Katam Sabbam Aparadam Kamatu Me Bante Tatiyampi Okasa Vandami Bante Dwaratayenam Maya Katam Sabbam Aparadam Kamatu Me Bante. खमतु खमामि स्थिता हन्तु निरोगी हन्तु दुःखन्तु निब्बानस्य पच्चय हन्तु. Aham Bante. Okasa Aham Bante. Tisarane Saham Panchaशीlam Dhammam Yachami Anugaham Katva Sila Detame Bante. Dutiyampi Okasa Aham Bante. Tisaranena Saham Panchaशीlam Dhammam Yachami Anugaham Katva Sila Detame Bante. Tatiyampi Okasa Aham Bante. Tisaranena Saha Panchaशीlam Dhammam Yachami Anugam Katva Sila Detame Bante. यं अहं वदामि तं वदेथ. Aham Bante. नमो तस्य भगवतो अर्हतो सम्मा सम्बुद्धस्य. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. बुद्धं शरणं गच्छामि. Buddham sharanam gacchami. धम्मं शरणं गच्छामि. Dhammam sharanam gacchami. संघं शरणं गच्छामि. Sangham sharanam gacchami. द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि. Dutiyampi buddham sharanam gacchami. द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि. Dutiyampi dhammam sharanam gacchami. द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि. Dutiyampi sangham sharanam gacchami. तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि. Tatiyampi buddham sharanam gacchami. तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि. Tatiyampi dhammam sharanam gacchami. तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि. Tatiyampi Tatiyampi sangham sharanam gacchami. शरणागमनं निकृतम्. आं बन्ते. Aham Bante. Bante. वेरमणि सिक्खापदं समादयामि.
पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि अदिन्न दानातिरमणि सिक्खापदं समादयामि। अदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि कामेषु मिच्छाचारा विरमणि सिक्खापदं समादयामि। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि मूसावादा विरमणि सिक्खापदं समादयामि। मूसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि सुरामेरय मज्जपमादत्तानं विरमणि सिक्खापदं समादयामि। शूरामेरय मज्जपमादठाना वेरमणि सिक्खापदं साधु 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 तीसरनेन सन्धि पंचशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं तत्त्वपमा तेन शील संपा एतद्दो बनते बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि साधु साधु साधु। Thank you, Bhante, for the Khamayachana. Now, I would like to request Bhante Siri to start with the Dhamma talk. साधु साधु साधु। सबसे पहले तो मैं हमारे शास्त्रा को जिनके कारण से हमें आर्य शासन, आर्य विनय, आर्य धम्म प्राप्त हुआ है, उसी प्रकार उनका स्वाख्यात धम्म जो कि निर्वाणगामी है और उनका संग जो कि न्याय मार्ग पर आरूढ़ है। इसी प्रकार मेरे उपज है जिनके कारण से मुझे बुद्ध शासन में उपसंपदा प्राप्त हुई है और मेरे सभी आचार्य कल्याण के प्रति मंगल कामना। इस प्रकार से विषय दिया गया है मुझे 22 प्रतिज्ञा, 22 वोव्स, जो हमें बाबा साहब ने दीक्षा के समय में दिया था और उसकी प्रासंगिकता, क्यों दिया था हमें ये सबको पता है। कारण यह था कि हम फिर से हिंदू धर्म में सम्मिलित ना हो जाए, मिक्स ना हो जाए, इसलिए दूर रखने के लिए कि फिर से इनका सब फिर से हिंदुज़म में जाके मिल ना जाए, तो उस प्रकार से दूर रखने के लिए तो क्या ऐसी आवश्यकता थी उस समय? उसकी आवश्यकता बहुत थी क्योंकि उस समय बौद्ध साहित्य उतने प्रचुर मात्रा में हमारे पास उपलब्ध नहीं, ना ही बौद्ध मत के उतने विद्वान हमारे पास तब उपलब्ध थे कि जो बौद्ध धर्म की ठीक प्रकार से व्याख्या कर सके और बौद्ध धर्म को समझा सके। जो सबसे महत्वपूर्ण बात उस समय की थी जब बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा दी, ये थी कि उस समय बुद्ध किसी को पता नहीं था। जिस समाज को दिया जा रहा, भले बुद्धिजीवी वर्गों में कई सारे विद्वान जो लोग पढ़े लिखे थे उन्हें लोगों को पता था, आनंद कौशल्यान, राहुल संगुता, धर्मानंद कौसम्बी, गांधी जी वगैरह, इन सभी को भगवान बुद्ध के बारे में पता था, अर्जुन केरुस्कर वगैरह, ये सब लोग थे। पर एक उच्च दबके को जो बहुत पढ़ा लिखा था उसको पता था। पर जिस समाज को बौद्ध धर्म दिया जा रहा था उस समाज को बौद्ध धर्म के बारे में कुछ नहीं था। और ऐसे समाज को जिस समाज परिवर्तन होने जा रहा है, जो एक नया धर्म को स्वीकार करने जा रहा है, उस धर्म के बारे में अगर उस समाज को कुछ भी नहीं पता तो कुछ ना कुछ बाउंड्री, सीमा रेखा उनको बताना जरूरी है। वो बात कुछ और है कि जब उनको पता लग जाएगा तो तब इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस बात की ध्यान रखिए कि 22 प्रतिज्ञा की आवश्यकता हमें किस लिए? क्योंकि हमें बुद्ध धम्म नहीं पता। बौद्ध धम्म ना पता होने के कारण से हमें 22 प्रतिज्ञा की इतनी आवश्यकता है। एक बार हमें ये पता लग गया कि बौद्ध धम्म क्या है तो हमें 22 प्रतिज्ञा की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्योंकि जब धर्म पता होता है कि क्या है और हमें हमारा धर्म क्या सिखा रहा है, जब ये बात पता होती है तो हम उसके हिसाब से आचरण करना शुरू करते हैं। तो डूज एंड डोंट्स, जब धम्म की बात है, हमें धम्म को लेकर डूज एंड डोंट्स नहीं पता कि क्या करना है क्या नहीं करना है, धम्म को लेकर हमें नहीं पता। हमें हिंदू धर्म के संदर्भ में पता है जो पता है। और आज भी जब 22 प्रतिज्ञा का, आज चाहे सामाजिक कार्यकर्ता हो या राजनीतिक कार्यकर्ता हो या विशेष रूप से बौद्ध धर्म के धर्म गुरु ही क्यों ना हो, जब वो कार्य कर रहे हैं तो वो कार्य 22 प्रतिज्ञा को समझाने में लगे हैं दिन रात। कई सारे लोग आज भी 22 प्रतिज्ञा को समझाने की कोशिश करें। 22 प्रतिज्ञा में समझने लायक कुछ नहीं है। डायरेक्टली स्टेटमेंट में बोल दिया गया है कि ये है, आपको ये नहीं करना है।
पर वो भी आज हमें बोलने की जरूरत पड़ रही है, वो भी आज हमें समझाने की जरूरत पड़ रही है। क्यों पड़ रही है? क्योंकि हमने सही मायने में बुद्ध की शिक्षा दी ही नहीं। आज भी जब आप आवाज इंडिया का चैनल, यूट्यूब चैनल देखते हैं, आवाज इंडिया, लॉर्ड बुद्ध का जब चैनल देखते हैं, तो वहां पे व्यूवरशिप देखिए कि किस प्रकार के लेक्चर्स को ज्यादा व्यूज जा रहे हैं। इससे पता लगता है कि हमारा समाज क्या सुन रहा है। हमारा समाज धर्म सुन ही नहीं रहा। हमारा समाज को लगता है कि सामाजिक क्रांति सब कुछ है, ये सामाजिक क्रांति, पर सामाजिक क्रांति पर भी वो विश्वास करने पर भी उनके कार्य जो है राजनीतिक ताकत हासिल करने के लिए है। और ये सारी समस्या वहां से उत्पन्न हो रही है। कहने के लिए सामाजिक क्रांति कहते हैं, पर इनको चाहिए राजनीतिक ताकत। तो इन दोनों का इन लोगों को ढांचा ही नहीं पता। दरअसल बात है कि सामाजिक क्रांति आएंगी धर्म की शक्ति बढ़ने पर। जब धर्म मजबूत होगा तो समाज मजबूत होगा। प्रयास क्या होता है कि हम समाज को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, हम धर्म को मजबूत करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। हमको लगता है कि समाज आदर्श बनाना पड़ेगा। समाज आदर्श किसके आधार पर बनेगा? समाज आदर्श बनेगा धर्म के आधार पर। तो धर्म की जड़ें मजबूत होना चाहिए। अब जब धर्म की जड़ें मजबूत बनाने की कोशिश करते हैं तो हम धर्म को पूरा विज्ञानवाद के रूप में रखने के प्रयास में हम संस्कृति निर्माण नहीं कर पा रहे हैं। किसी भी समाज की संस्कृति विज्ञान के आधार पर निर्माण नहीं होती है, बल्कि वो कितना समरसता अनुभव करता है अपने समाज में, इस भाव के आधार पर संस्कृति निर्माण की जाती है। पर भारतीय समाज में, भारतीय बौद्ध समाज में सबसे बड़ी शोकांतिक की बात है कि यहाँ पे संस्कृति को विज्ञान के आधार पर, विज्ञानवादी तर्कनिष्ठता के आधार पर, बुद्धिवादी के आधार पर संस्कृति निर्माण करने की कोशिश की जा रही है। और इसलिए भी बौद्ध समाज में लोग टूटते जा रहे हैं। लोगों इस समाज में गट पे गट नए हमें मिलते जा रहे हैं, चाहे कोई भी संस्था का निर्माण हो जाए। भारतीय बौद्ध समाज में आप कोई भी संस्था निर्माण कर दो, वो संस्था कभी भी लंबे समय के लिए नहीं चलेंगी। कुछ मेंबर्स वहां से निकल जाएंगे या कुछ मेंबर्स फिर से नई संस्था बना देंगे। क्योंकि बुद्धिवाद, तर्कवाद, ये जो चीजें हैं, ये व्यक्ति को आवाज उठाने के लिए मजबूर कर देता है और किसी के अंदर काम ना करने के लिए मजबूर कर देता है। उसमें इतना ईगो डेवलप हो जाता है, क्योंकि बुद्धि मतलब अहंकार, अपने आप को श्रेष्ठ मानना। जब हम किसी के साथ तर्क कर रहे हैं तो ज्यादातर क्या होता है कि मुझे पता है, मुझे ये आता है, और इसके आधार पर आप समाज निर्माण करने की कोशिश में समाज टूटेगा ही। और ये 60 सालों का उदाहरण है। हमारे पूरे समाज में 60 सालों में ना पैंथर, ना ये सामाजिक संगठन टिक पाई, ना बीएसपी, ना बामसे, ना समता सैनिक। जो जो संगठनाएं उठ गए, अभी हमें दिख रहे कि क्या नाम है उनका, चंद्रशेखर आजाद उभरता हुआ दिख रहा है, पर देखते कि वो भी कितना चलेंगे। एक होता है कि एक समय में ये लोग बनाते हैं, फिर आगे जाके वो भी सब समाज तोड़ने के काम कर जाते हैं। क्यों होता है? क्योंकि सामाजिक रास्ता जो अनुभव होनी चाहिए, एकात्मता जो अनुभव होनी चाहिए, वो नहीं हो रही है। और वो एकात्मता अनुभव किसके आधार पर होती है? संस्कृति के आधार पर। और संस्कृति जब इस भाव को ध्यान में रख के इवॉल्व की जाती है तब जाके होगा। पर हम संस्कृति इस भाव को ध्यान में रख के इन्वॉल्व हो कर रहे हैं कि विज्ञानवाद, विज्ञान होना चाहिए, विज्ञान निष्ठ होना चाहिए, और ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि समरसता उत्पन्न करने के लिए हमें आवश्यकता होती है रिचुअल्स की। और सिर्फ भारतीय बौद्ध समाज एक समाज है, उसमें भी मध्य प्रदेश का स्पेशली महाराष्ट्र बौद्ध समाज हम देखेंगे, उसने रिचुअलिस्टिक, कल्चरिस्टिक संस्कृति डेवलप करने की कोशिश की ही नहीं है। आप उधर जाके देखिए, नॉर्थ इंडिया में हम उधर देखते हैं, जो आसाम, मिजोरम वगैरह में, वो इतना जुटे हुए क्यों है? आप बांग्लादेश में जाके देखिए, बांग्लादेश में बुद्धिज्म एक माइनॉरिटी की तरह है, पर फिर भी वो लोग स्ट्रांग है थोड़े बहुत, वो लोग अस्तित्व में हैं। और आज महाराष्ट्र में हम जो बौद्ध, जितनी इनकी इतनी बड़ी संख्या है, फिर भी इनके अस्तित्व खतरा है। राजनीतिक स्वरूप में नहीं, राजनीतिक स्वरूप में जितना खतरा नहीं है उतना हमें समाज के स्वरूप में खतरा है। क्योंकि आज भी हमारे लोग जिस प्रकार से, कई सारे लोग, अगर आप नागपुर में रहते तो नागपुर में एक इलाका आता है आपका मार्टिन लेआउट वगैरह, उसमें कई सारे अपने ही लोग क्या बन रहे, क्रिश्चियन बन रहे हैं। कई सारे अपने ही लोग क्या बन रहे, हिंदू बन रहे हैं। कई सारे अपने ही लोग क्या हो रहे, आरएस में जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि वहां जाके उन्हें समरसता का अनुभूति होती है, एकात्मता की अनुभूति होती है। और बाबा साहेब भी इस चीज की तारीफ करते हैं। तो हमने सामाजिक समरसता, एक रास्ता डेवलप करने की कोशिश नहीं की। हम 22 प्रतिज्ञा, अब 22 प्रतिज्ञा का हमने इस्तेमाल इस प्रकार से किए कि हमने बौद्ध धर्म के प्रति लोगों में जहर भरना शुरू किया है।
आज अगर आप जब यूट्यूब उठा के देखते हैं तो यूट्यूब में एक वॉर शुरू है, और उस वॉर में जो सेंट्रल थीम है वो अम्बेडकरिज्म निभा रहा है। आप कभी उठा के देखिए, चाहे सनातन समीक्षा हो, चाहे साइंस जर्नी हो, चाहे जो अभी न्यू यूथ आ रही है, हिंदू समाज की जो न्यू यूथ आ रही है, जो पढ़ी लिखी है, जो बहुत पढ़ रही है, आप उनके चैनल्स देखिए, चाहे इंस्टा पे उठा के देखिए, किस प्रकार से डिस्कशन कर रहे हैं। वो बौद्ध धर्म से खुद की निकाल रही चीजें। हम ये बात समझने की जरूरत है कि 22 प्रतिज्ञा ये कोई शस्त्र नहीं है, ये कोई ढाल नहीं है जो आप खड़ी कर रहे हैं और कोई भी वार कर रहा है, या ये कोई मिरर नहीं है जो आप लोगों के सामने खड़ा करोगे, देखो तुम्हारा धर्म में ऐसा दिया है। 22 प्रतिज्ञा ये हमारा इंटरनल अफेयर है, और हमने इसे एक्सटर्नल अफेयर के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिए। और इसी कारण से ना सिर्फ हमने अपने समाज को तोड़ दिया, और अपने समाज के विरुद्ध में कई सारे समाज को खड़ा कर दिया। आज ओबीसी समाज, जिसके साथ हमारी काफी अच्छी एक निष्ठा होनी चाहिए, ओबीसी समाज भी इस 22 प्रतिज्ञा के कारण आज हमारे साथ एक साथ गान जाता। बिहार में लगा कर दी हमने बड़े बड़े 22 प्रतिज्ञा। आप बताइए, अगर ओबीसी व्यक्ति बिहार में आए और पहले वो पढ़ लेगा तो क्या समझेगा? उसको तो घृणा भाव उत्पन्न होगी ना। हम ये नहीं कर सकते कि शुड बी रैशनल ऑन दैट थॉट, नो, बिकॉज इट इज अबाउट द बिलीफ सिस्टम। हम रिलीजन में रैशनलिटी की बात नहीं कर सकते हैं। हम रिलीजियस में कभी भी पूरा रैशनल नहीं हो सकते। लास्ट टाइम जब मेरा एक इंस्टा लाइव था एक इंटेलेक्चुअल व्यक्ति के साथ, तो उसमें जो ना कमेंट आया था कि बंदे जी ने बात का द मॉन्क हैज सेड सो वेल, बट रैशनलिटी ज्यादा नहीं दिखी। तो उनको ये रिप्लाई दिया कि मैं जब बात धर्म की कर रहा हूँ, तो आप धर्म में बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वहां पर रैशनलिटी हो। अगर आप पूरा त्रिपिटक उठा के देखेंगे तो रैशनलिटी पूरे त्रिपिटक में नहीं है, कई जगहों पे भगवान के उपदेश दिखे जहाँ पे रैशनलिटी नहीं है। आप रैशनलिटी कुछ ही शब्दों में इस्तेमाल कर सकते हैं। धर्म वर्क करता है बिलीफ सिस्टम में, हम उसको डिनाई नहीं कर सकते। हाँ, उसके परसेंट चेंज हो सकते हैं। कहाँ पे बिलीफ सिस्टम 90% डिमांड करता है, तो कहाँ पे बिलीफ सिस्टम 20% 30% वर्क करता है। तो पर बुद्धिज्म में बिलीफ सिस्टम वर्क करता है। आप अगर मॉडल देखें, जो मॉडल अभी एग्जिस्ट करते हैं, श्रीलंका में जाके देखिए, थाईलैंड में जाके देखिए, आसाम मिजोरम में जाके देखिए, जब ये बुद्धिज्म एज ए कम्युनिटी के रूप में, प्रॉब्लम ये आती है कि इंडिया में बुद्धिज्म हम कभी भी एज ए कम्युनिटी के रूप में अंडरस्टैंड करने की कोशिश नहीं करते हैं। बुद्धिज्म हम कभी भी एक फिलोसॉफी और रैशनल फिलोसॉफी, रैशनल अप्रोच टू सी लाइफ, बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सोसाइटी, वी कांट थिंक इट लाइक दैट। When we are talking in the frame of society, we should be aware about that there is a need of a belief system. Without belief system, you can't hold a society. सोसाइटी को होल्ड कौन रखता है? अरे फिलोसॉफी कितनी भी रैशनल क्यों ना हो, अगर उसमें बिलीफ सिस्टम नहीं है तो सोसाइटी होल्ड नहीं कर सकती है। और फिलोसॉफी कितनी भी वर्स्ट क्यों ना हो, कितनी आज्ञावादी क्यों ना हो, कितनी इररेशनल क्यों ना हो, पर अभी बिलीफ सिस्टम ठीक प्रकार से वैल्यूड किया गया है, तो वो धर्म मजबूत क्यों होगा आगे जाके। और वही हिंदू समाज में आज हुआ है। अगर आप हिंदू समाज को ठीक प्रकार से पढ़ते, उसके दर्शन को ठीक प्रकार से पढ़ते हैं, आप ज्यादा मत पढ़िए, हिंदू धर्म की पहली ये किताब पढ़ लीजिए, उसमें साफ साफ पता लग जाएगा कि हिंदू धर्म कितना टूटा हुआ है, कितना टूटा हुआ है, कितने गठ है उसमें, फिर भी आज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर के रूप में वो स्टैंड कर रहा है। क्यों स्ट्रॉन्ग कर रहा है? क्योंकि व्हाट दे हैव डन, दे हैव स्ट्रॉन्ग देयर बिलीफ सिस्टम। ऑन द लेवल ऑफ फिलोसॉफी वो बहुत टूटे हुए हैं। उनके एक ग्रंथ में 2-2 3-3 मत मिलते जो कि एक दूसरे को काटते हैं, चाहे वो सृष्टि निर्माण को लेके हो, ईश्वरवाद को लेके हो, है ना। मोनोथिज्म तो है ही नहीं, पॉलीथिज्म है, और मोस्ट इकोनोथिज्म है बुद्धिज्म में, सॉरी हिंदुइज्म में। फिर भी आप देखिए होल्ड करके है। क्यों? क्योंकि उन्होंने बिलीफ सिस्टम पे वर्क किया। उनके जो समाज कार्य करता है, जो राजनीतिक कार्य करता है, उन लोगों ने बिलीफ सिस्टम को मजबूत किया। आज इतने सारे सदगुरु, इतने सारे धर्मगुरु आ रहे हैं और कई सारे के विचार को काटते हैं, पर फिर भी देखिए हिंदुइज्म एक और भी स्ट्रॉन्ग पिलर होते जा रहा है। आप कभी उठा के देखिए, कभी सर्वे कीजिए इंस्टा में, कभी सर्वे कीजिए यूट्यूब चैनल्स के, हिंदू यूथ के, आपको देखने को मिलेगा कि अलग अलग हिंदू कम्युनिटी के जो लड़के हैं वो किस प्रकार से आज हर लड़का कोशिश कर रहा है कि हिंदुइज्म को हम कैसे यूनिफाइड वे में दिखा। हर इंसान, हर यूथ, चाहे आईआईटी से पास हो रहा लड़का या चाहे कैसे भी हो रहा है, थोड़ा सा भी नॉलेज आ रहा है, वो यही कोशिश कर रहा है कि कैसे हम ये जो बातें ये दूर कर सकते हैं और कैसे यूनिफाइड फॉर्म में दिखा सकते हैं, और कैसे इसके जो बिलीफ सिस्टम है उसको रैशनल अप्रोच करके उसे हम रख सके। पर हिंदुइज्म में वैसा नहीं, पर बुद्धिज्म में वैसा नहीं हो रहा। बुद्धिज्म में क्या हो रहा है कि हमें जो लग रहा है कि जो रैशनलिटी, जो बिलीफ या जो बुद्ध की फिलोसॉफी साइंस साथ मैच नहीं कर रही, हम उसे हटा दे रहे हैं।
हम उसे प्रूव करने की कोशिश नहीं कर रहे, हम जस्टिफाई करने की कोशिश नहीं कर रहे, हम उसे रैशनलाइज करने की कोशिश नहीं कर रहे, बल्कि हम उसे डिनाई कर दे रहे। और जिसके कारण से हम क्या कर रहे हैं, बुद्धिज्म को ही क्या कर रहे हैं, काउंटरली रोक रहे हैं। और इसके कारण बुद्धिज्म में जो हाल हिंदुज्म का हुआ है, आज हम हाल बुद्धिज्म करें कि बुद्धिज्म में कास्ट सबकास्ट कम्युनिटीज डेवलप कर रहे हैं, और वो हो रहा है आज बुद्धिज्म में। आज आप उधर के देखिए, अगर एक सही बात कहनी जाएगी, आप आसाम मिजोरम के बुद्धिस्ट को भी देखिएगा, वो लोग बिल्कुल नहीं कर पसंद करते महाराष्ट्र बुद्धिस्ट लोगों को, क्योंकि जो सिस्टम है, जो बिलीफ सिस्टम है, उसको ठेस पहुंचा रहे वो लोग बुद्धिज्म के, जिन्होंने इतने सदियों से जो बुद्धिज्म को टिका के रखे, जिनके यहाँ पे टिका हुआ है, और तुम उनके बिलीफ सिस्टम पे उंगली उठा रहे हो। आज मोस्ट ऑफ लोग, सिर्फ इधर की नहीं तो कई सारे कंट्रीज में भी महाराष्ट्रियन बुद्धिज्म को जिस प्रकार से रखा जा रहा है वो बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे। आपके भी चर्चा के लिए आराम से बैठिएगा, ये काफी विवाद में मैं भाषण दे रहा हूँ, लेकिन सही में ये सत्य है। आप उठा के देखिए, साइंस जैसा चैनल क्या कर रहा है, पूरा बुद्धिज्म को डिनाई कर रहा है डायरेक्टली वो। और इसलिए भी आज सिर्फ हम में नहीं दिख रहा है, आज ये बाहर के लोग भी दिख रहे हैं। आज जब मैं डिस्कस करता हूँ बाहर के स्कॉलर्स के साथ, जो हिंदू जो यूथ, जब हमारा डिस्कशन होता है उनके साथ, इंस्टा लाइव होता है, तो लोग साफ डिफरेंट करते हैं कि बुद्धिज्म इज डिफरेंट एंड अम्बेडकराइट बुद्धिज्म, दे क्रिटिसाइज दिस, कि वो लोग कुछ भी नहीं, वो लोग सब पूरे बुद्धिज्म को नष्ट कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एक एंग्री मैन के रूप में स्टैब्लिश कर दिया बुद्धिज्म को, कि नहीं, दे दोज हु आर फॉलोइंग द अम्बेडकराइट बुद्धिज्म, दे जस्ट वांट टू क्रिटिसाइज हिंदुज्म। तो क्या हमारा यही काम है कि हम हिंदुज्म को क्रिटिसाइज करें? क्या हमारा फ्रेमवर्क सिर्फ हिंदुज्म है? क्या बुद्धिज्म का अपना कोई फ्रेमवर्क नहीं है? तो ये सब क्यों ऐसा हो गया, क्यों ऐसी मेंटेलिटी हमारी डेवलप हो गई? क्योंकि हमने बाबा साहब के दिए हुए 22 प्रतिज्ञा को गलत तरीके से समझ लिए। जो इंटरनल अफेयर होना चाहिए था उसको हमने एक्सटर्नल अफेयर कर दिया, और कहते हैं जो नहीं दिखाना चाहिए था, जब वो लोगों को दिखा देते हैं तो फिर लोग उसी का इस्तेमाल करके हमारा नुकसान करना शुरू कर देते हैं। तो जब 22 प्रतिज्ञा के साथ आप डील कर रहे हैं, तो आपको ये बात समझनी होगी कि 22 प्रतिज्ञा ये एक इंटरनल अफेयर है, और ये शुरुआती अफेयर था। अभी जब हमारे पास लिटरेचर अवेलेबल है, तो हमने बुद्धिज्म बताने का प्रयास करना चाहिए कि बुद्धिज्म क्या सिखाता है, बुद्धिज्म का बिलीफ सिस्टम कैसे वर्क करता है। मैं एक बार जब एक एनजीओ में जब एक लेक्चर दे रहा था, तो एनजीओ में लेक्चर देने के बाद एक लड़की मेरे पास आई, उस लड़की ने आके मुझे पूछा कि आपके बुद्ध विहार में क्या हम हिंदू लोग भी आ सकते हैं क्या? कितना प्यारा सवाल था, आप विचार कीजिए। पर जब वो विहार में आएंगे और देखेंगी ये 22 प्रतिज्ञा, इसमें ये लिखा है, वो क्या सोचेंगे? 22 प्रतिज्ञा एक सीमा है, बल्कि एक शील्ड नहीं है। आज आप देखिए, जब 22 प्रतिज्ञा को, जब अभी बीच में मेरे ख्याल से दीक्षा हुई थी, तो वहां पे 22 प्रतिज्ञा को इस्तेमाल किया गया, तो एक नेता को ये करना होना, रेजिग्नेशन देना पड़ा, रिजाइन होना पड़ा उसको। क्या एक सवाल ये आता है कि 22 प्रतिज्ञा की हमें अभी आवश्यकता क्यों है, और 22 प्रतिज्ञा क्यों हमें बताना पड़ रहा है आज भी, जबकि 60 साल हो गए दीक्षा के? और मेरे ख्याल से शुरुआत में तो जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता है उन्होंने 22 प्रतिज्ञा ही तो बताई ना, तो इतना बताने पर भी आज क्यों बताने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि हम बुद्धिज्म नहीं बता रहे। एक समय आप नहीं बता सकते, आपके पास समझ जाओ 20 मिनट टाइम लिमिट दी है, और आपको बोला गया बुद्धिज्म पे बोलो, और आप बोलोगे 22 प्रतिज्ञा पे, बुद्धिज्म कहाँ है? इस बात की समझ हो। और 22 प्रतिज्ञा किस चीज के लिए है, किनको बताने के लिए है और किनको बताने के लिए नहीं है, किसके लिए इस्तेमाल करने के लिए और किसके लिए इस्तेमाल करने के लिए? क्योंकि आज भी डिबेट हो रहे हैं। अगर आप सोशल कम्युनल हार्मनी की बात कर रहे हैं, तो आप 22 प्रतिज्ञा को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। एक तरफ आप लोग कहेंगे कि आप कम्युनल हार्मनी की बात कर रहे हैं, इंटररिलीजियस पीस की बात कर रहे हैं, ये इसको आप कैसे रखेंगे? तो समझाना होगा। और क्योंकि हर धर्म में दिया होता है, ऐसा नहीं कि बुद्धिज्म में दिया, हर धर्म दूसरे धर्म की निंदा करता है, पर जो बात निंदा करती है वो उसको इंटरनल अफेयर रखते हैं, है ना। बात जब कम्युनल हार्मनी की आएंगी, तब आपको जाके सौहार्द में शब्द ही बोलने पड़ेंगे। अगर आपको कहीं पे बुलाया जा रहा है, इंटररिलीजियस कॉन्फ्रेंस पे बुलाया जा रहा है, तो आप ये नहीं बोल सकते कि हम तो ईश्वर को मानते ही नहीं है, हमारी फिलोसफी में तो ईश्वर है ही नहीं। आप ऐसा नहीं बोल सकते। आपको वहां पे जाके बोलना पड़ेगा कि किस प्रकार हमारा दर्शन मैत्री सिखाता है, किस प्रकार हमारा दर्शन करुणा सिखाता है। आपको प्रिय कर्ण जो शब्द को सबसे अच्छे जो सुनने लगे, तब जाके। मुझे याद है जब एक बार मैं चर्च में गया था, मुझे वहां पे बोलने के लिए बुलाया गया था, पीस पे बोलने के लिए बुलाया गया था, है ना।
तो वहां पे हमने पीस पे बोला तो मैंने बुद्ध की ऐसी फिलोसफी रखी, वो बात मेरे कॉलेज तक पहुंच गई। फिर वहां पे टीचर्स लोग डिस्कस कर रहे थे, हमारे एक टीचर बता रहे थे कि यार एक मंक आया था, कितना अच्छा उन्होंने बुद्धिज्म का पर्सपेक्टिव रखा, उनको अट्रैक्शन डेवलप हुआ। पर उसके पहले कुछ सालों पहले पता नहीं कौन से मंक गए थे, तो उन्होंने इस प्रकार से ये किया कि हम ईश्वर को नहीं मानते, ये नहीं मानते, तो लोग कैसे सुनेंगे इस बात को? आप किसी की बिलीफ सिस्टम को ठेस पहुंचा के किसी को सोचने के लिए नहीं बस कर सकते हो, डायरेक्टली अस्वीकार करेंगे आपसे। फर्स्ट कन्वे देम, देन कन्वर्ट देम। तो ये शुरुआत होती है। तो बुद्धिज्म में जो 22 प्रतिज्ञा है, 22 प्रतिज्ञा को आपको समझाना होगा कि जो स्टैब्लिश हो चुकी है उनके लिए है, जो अंडर के लोग हैं उनके लिए है, हर एक के लिए नहीं है। तो इस प्रकार से मेरा व्यू है 22 प्रतिज्ञा को लेके, शायद गलत भी हो सकता हूँ। इतना आज के लिए काफी है। साधु साधु। Thank you, Bhante ji, for your insightful talk on 22 vows and Dhammadiksha. If anyone have any question, please raise your hand, type your question in the chat box or unmute yourself. If anyone has any question, please raise your hand or unmute yourself and ask. Namami Bhanteji, I have one question. Yes. So, according to 22 vows, so the lot of people who are now converting to Buddhism, then the people who are already decided to convert to Buddhism, and while during the Diksha, shouldn't it take the 22 vows or what? I don't think that there is a need to take a 24 vows at the time of Diksha. Because if they are, क्योंकि बाबा साहब के समय में बाबा साहब के कहने पे हमने लिया, और अभी जब लोग बौद्ध धर्म ले रहे हैं, कन्वर्ट हो रहे, तो इट मीन्स दे हैव रीड बिफोर, दे हैव गॉन थ्रू दैट व्हाटएवर what is the Buddha's teaching. It means they know that there is no place for the God. Okay, so they are already aware about that. So why we are taking that again? Why we are doing that again? Just to remind that we are entering to the new perspective of Buddha, or No. in a religion of Buddha. For that you have to develop a rituals, not to think, not that. There is no need to do that thing, I think. But if you want to do that, then it is okay. But I don't think, but for as to set Buddhism as a social religion and social harmonious religion, then it will become a keel for upcoming times. क्योंकि अगर आप सही में अगर बौद्ध धर्म को दिखाना चाहते हैं कि हाँ ये विश्व धर्म है, ये सभी को एक साथ लेके चलता है, इसमें करुणा मैत्री है, तो 22 प्रतिज्ञा को आने वाले लोग एक शस्त्र के रूप में इस्तेमाल करेंगे बुद्धिज्म का अपोज करने के लिए। Okay, thank you, Bhante ji. तो Bhante जी, thank you for the very insightful talk. बहुत अच्छा आपने भी थोड़ा इसके ऊपर प्रकाश डाला है। अच्छा होना चाहिए। काफी पढ़े लिखे लोग हैं। तो Bhante जी, ये जो 22 ओज है, उसमें जो 6 ओज है उसमें पहले तो हिंदू धर्म को मना कर दो ऐसा बोला है, और बाद में 7 से 22 तक जितने भी ओज है उसमें तो पूरा बुद्धिज्म ही बताया, यानी बुद्धा जी फॉलो करो, एटफोल्ड फॉल, 4 नोबल ट्रूथ, आप पंचशील, यही बताए हैं। तो उन्होंने वही रिपीट किया 7 से 22 तक, लेकिन 1 से 6 तक सिर्फ हिंदू धर्म को मत फॉलो करके बोला है। तब तो उसकी आवश्यकता थी, बाबा साहब जो किया तब उसकी आवश्यकता, बाबा साहब ने एक एक चीज आप सोच समझ के किया। आप विचार कर सकते कि दीक्षा का समय है, लोगों को पता नहीं है, बुद्धा ने धम्मा इंग्लिश में लिखा है, तो बाबा साहब ने एट द पॉइंट वो जो किया और बहुत सोच समझ से किया है। बिल्कुल। लेकिन बंदे जी अभी भी लोग लेकिन अपने उसी में जा रहे हैं, लेकिन उसी क्यों वैसा हो रहा है उसमें जा रहे हैं, जबकि हम तो 60 सालों से वही बता रहे हैं ना 22 प्रतिज्ञा। तो वही तो क्वेश्चन आता है ना, जब हम 60 सालों से वही बता रहे, फिर क्यों लोग उधर जा रहे हैं बार बार?
हर बिलीफ विहारों में, सिस्टम नहीं है। नागपुर के या इंडिया के हर विहारों में देखिए, चाहे गांव का और बाउस प्रज्ञा दिखेंगे आपको, ऐसा नहीं कि नहीं दिखेंगे। सो सही वेयर बात। वी आर लैकिंग। और चाहे कितने बड़े बड़े किताबें लिखे हैं आपके, वो दहाटी किताब लिखी है बाउस प्रज्ञा पे, इतनी बड़ी बड़ी। सही बात है। थैंक यू भंते जी। संकेत, प्लीज गो अहेड। Yeah, Bhanteji, this is quite a contentious topic. From quite earlier, when we were preached as a child, what Buddhism is. The starting, yes, it's about following those 5 precepts, right? That internalize yourself, define how you live and all. But then what not to do, and when you meet the people, जो Hinduism के है, तो उनका देखने का नजरिया हमारा थोड़ा चेंज होता है। बट जैसे आपने फ्रेम किया कि जब उनसे मिलता है, व्हेन वी लिव इन अ सोसाइटी एंड सोसाइटी इज फॉर्म ऑफ डिफरेंट क्लासेस, सो वी हैव टू लिव विद देम एंड वी हैव टू लिव इन टुगेदर, वी हैव टू फाइंड दैट पीस। बट इन टुडेज वर्ल्ड वेयर वी सी द नीड कि इसकी आज आवश्यकता है कुछ जगह पे जहाँ पे अभी भी ये रिचुअल्स फॉलो कर रहे हैं, वर्सेस in somewhere else, like यहाँ पे अगर global context में देखा जाए तो I personally feel it shouldn't be starting point at least. It needs to, Buddhism definition needs to start somewhere with the 5 precepts or other, and then if needed, if somebody is getting from Hinduism into Buddhism, maybe it's required. So in today's context, in global context, where do you draw the line of we should go to the 22 प्रतिशत की तरफ जाना चाहिए कि इसकी तरफ बात भी नहीं करना चाहिए? और इसके लिए मैं एक एग्जांपल दूंगा कि जैसे आपने कहा ये इंटरनल अफेयर, but the same rationale can be used by any religion. Like in Muslim world, कुरान में अगर अगर कुछ लिखी है चीजें जिससे हम नहीं एग्री करते, radicalization हो गया, any other topic, it can also be justified as an internal affair. So how do you draw the line and what's the justification? Most of people are converting towards Islam. I mean, even in Thailand, it is also most of people are becoming Muslim. Okay. So मैं जो हमें बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कई सारे लोग मुसलमान बन रहे हैं जबकि उसमें कई सारी बातें दी है ना, दूसरे धर्मों के विरुद्ध में भी दी गई है, पर हमें रेयरली वो बातें सुनने के लिए आती है। रेयरली हमें उसे उतना डेप्थली रेफरेंस, जब कोई बहुत स्टडीज करता है तब जाके उसे पता लग के आती है। पर बाविस प्रज्ञा को लेकर वैसा नहीं हुआ। बाविस प्रज्ञा इतना एक आसानी से पता लग जाती कि भाई ये बाविस प्रज्ञा है, ये ऐसा है, वो ऐसा है। मैं जब उसे इंटरनल अफेयर कर रहा हूँ तो यस, इट शुड बी, देयर शुड बी बाविस प्रज्ञा, पर वो ऐसा नहीं कि आप एकदम बोर्ड लगा के रख दे रहे रास्ते पे, है ना। व्हेन समवन इज अप्रोचिंग बुद्धिज्म, okay, when someone in commencement he converted, then slowly tell him that this is how Baba Sahib preaches, okay ना। Like when Muslim Islam, they teach us slowly ना, वो धीरे धीरे करके समझाते, पहले वो उनकी बिलीफ को एकदम ये नहीं पहुंचाते। तो मैं जब कह रहा हूँ कि हमने इसे एक्सटर्नल अफेयर बना दिया है, तो हम लोगों के बिलीफ सिस्टम को इसे धक्का पहुंचा रहे हैं। और जब मैं कह रहा हूँ कि इसे इंटरनल अफेयर रखो, तो यूज इट एज ए स्लोली वे। फर्स्ट ऑफ ऑल, let them understand what is the Buddhism, and once they will understand Buddhism, it is so easy to convey them. See, we don't agree with the Shiva, we don't agree with the Parvati वगैरह वगैरह, जिनका बिलीफ सिस्टम ही चेंज नहीं हुआ है, जो अभी तक कन्विंस ही नहीं हुए, अगर आप उनको बात पढ़ना पढ़ाओगे तो वो मिस्टेक होंगे। तो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट ऑन द ग्लोबल लेवल, you can't talk freely just like Dalai Lama. Now Dalai Lama is a global monk, okay ना। अब उनके सेक्ट में ऐसी कई सारी अंधश्रद्धा वाली बातें हैं, ऐसे कई सारे पूजा पाठ है, इवन ऐसे कई सारे सेक्सुअल रिचुअल्स भी है वहां पे, एरोटिक रिचुअल्स भी है वहां पे, बट दे हैड नेवर टॉक्ड ऑन सोशली ऑन द ग्लोबल लेवल, दे हैड केप्ट इट इंटरनली। अगर आप उनकी फिलोसफी पढ़ते अच्छी प्रकार से तो पता लगा कितने सारे रिचुअल्स, किस किस तरह के रिचुअल्स है, किस किस तरह के कर्मकांड लामा सेक्स में। बट उन्होंने जब भी ग्लोबली बात करते तो ग्लोबली दे विल टॉक ऑन द कंपैशन, joy, anxiety, stress. So this type of diplomacy we have to maintain when we are talking on the global level. So when I am talking on internal affair and external affair, I am talking about the diplomacy we have to maintain there, because we are working on the level of society.
And when we are talking the society and the type of so many type of society, then there are so many types of mentality exist. कुछ बातें ऐसी होती है कि हम एकदम से किसी के हाथ में नहीं दे सकते ना. हम चाकू एकदम से जहाँ पे बच्चा जिस बिस्तर पे खेल रहा है उसी बिस्तर पे चाकू ला के नहीं रख सकते ना, क्योंकि चाकू एक बहुत अच्छी चीज है. चाकू अगर डॉक्टर इस्तेमाल करता है तो किसी की जान बचती है. अगर माँ इस्तेमाल तो खाना बनाती है. इट्स लाइक सेम. बांस परिधना एक विद्वानों का खेल है, मूर्खों का थोड़ी. Do you get it? मेक सेंस. आई थिंक इसको कॉन्टेक्स्ट में डालना बहुत जरूरी है कि जो 6 है उसमें कि ये नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं बोल रहा है, क्या कॉन्टेक्स्ट था उस वक्त. दिस ऑफ्टन गेट मिसइंटरप्रेटेड. Yes. Thank you. That time the people were illiterate, they were unaware about the Buddhism. But at nowadays it is so easy to approach Buddhism. And nowadays people want to listen Buddhism, owing to the Dalai Lama, owing to so many monks who are working globally. So owing to their anxiety, owing to their stress, they want to learn about the Buddhism. Okay. Thank you. Namo Bhante ji, this is Manish. Yes, Manish. Bhante ji, I have a question. So from our community, I see 40 to 50% of the people who were following Buddhism, who were following Dr. Ambedkar and the 22 vows of Dr. Ambedkar, they moved toward Buddhism, but they moved toward Hinduism. And even in my family, there are many who, till they got education, till they got out of the poverty, they followed Buddhism, but when they got married in another religion like Hinduism, they gave up all the practices of Buddhism and started following Hinduism. So isn't 22 vows necessary? What's your opinion on that? I think once they have developed a good belief system in themselves, so I don't think there's a need of 22 vows. Okay, now it's all about the commitment. So do they have the commitment regarding to the Ambedkar's thought regarding to Baba Sahib movement? If they are not committed, see, अगर आपके पास commitment नहीं है, you have to develop belief system. And if you don't have a belief system, you have to commit it. और दोनों चीजें आज नहीं हो रही है, तो उनका 22% संबंध होता ही नहीं है. अगर वो committed person है, तो it is easy to be more committed with 22 vows. And if they are not committed, then we have to work with the belief system of that person. Did you get my point? Yeah, understood. दरअसल है कि बुद्धिज्म में एक बहुत प्यारा कंसेप्ट है मिथ्या दिट्ठी. उस मिथ्या दिट्ठी को हमने कभी भी पॉपुलराइज नहीं किया बुद्धिज्म में, जो एक बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकता था. किसके काउंटर में? 22 परिज्ञा को. अगर 22 परिज्ञा को लेकर कभी किसी कमिटमेंट कम हो गई तो मिथ्या दृष्टि का उनको अच्छा, क्योंकि मिथ्या दृष्टि जो सबकॉन्शियसली सोशल लेवल पे जो कलेक्टिव कॉन्शियसली उनका काम किया रहता, बहुत स्ट्रॉन्ग किया रहता. जो 22 परिज्ञा है, इट्स अ टोटल रैशनल अप्रोच, टोटल approach with a commitment. Okay, but when we are talking on the level of society, we need a belief system which work on fear, not on rationality. Okay, so that's why I think we can develop the concept of mithya ditti and popularize it, and we must. Thank you, Vanteji. As we are lagging behind, let's start with the next session with your permission, Vanteji. Thank you so much for joining today. Now,